एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल बायो ट्यूटर। आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम ए टू जेड। ओके, इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 1 to 2 मार्क्स के इजीली क्वेश्चन आपके बन जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आता है कि व्हाट इज़ द एरोबायोलॉजी, एक्टिनोबायोलॉजी किसको हम लोग कहते हैं, इसमें किसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो आज हम ए टू जेड उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज़ एकेरोलॉजी। What is the meaning of एकेरोलॉजी? एकेरोलॉजी is a study of mites and ticks. ठीक है, एकेरोलॉजी it is a study of mites and ticks. Okay, the study of mites and ticks is called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकेरोलॉजी. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज एक्टिनोबायोलॉजी. एक्टिनोबायोलॉजी it is the study of radiation effects on organism. Okay, actinobiology is the study of radiation effects on organism. Okay, the study of radiation effects on organism. Okay, clear? It is the actinobiology. Next one is the aerobiology. What is the meaning of aerobiology? Aero it means air, तो इससे आप लोग समझ सकते हो. Aerobiology is the study of flying organism. Okay, aerobiology is the study of flying organisms. Okay, it is the study of flying organism, that is called aerobiology. And the next one is agriology. What is the meaning of agriology here? Agriology is the study of customs of primitive man. Okay, it is the study of customs of primitive man, that is called agriology. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रियोलॉजी. एल्गोलॉजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोलॉजी? एल्गोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी. इट इज वेरी सिंपल. एल्गोलॉजी इट इज द study of algae. Okay, and the next one is anesthesiology. What is the meaning of anesthesiology? And anesthesiology is the study of, it is the science for, or it is the study or the science for causing insensibility. Okay, anesthesiology is the science for causing insensibility. Okay, it is the science for causing insensibility. Okay, it is the science for causing insensibility. And the next one is aphidology. What is the meaning of aphidology here? Aphidology is the study of aphids. Okay, aphidology is the study of aphid. ठीक है, and the next one is araneology. And the next one is araneology. Araneology is a study of spider. Okay, it is the study of spiders. Okay, araneology. Arthrology. What is the meaning of arthrology? Arthrology it is a study of joints. Artho it means joints. It is the study of joints. Okay, it is the study of joints, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, arthrology. What is the meaning of bryology here? Bryology is the
study of mosses and liverwort. Okay, bryology is the study of mosses and liverwort. ओके, liverworts एंड मॉसेस की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रायोलॉजी. एंड द नेक्स्ट वन इज कार्सिनोलॉजी. कार्सिनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ क्रस्टेशियंस. ठीक है, कार्सिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्रस्टेशियंस. ओके, स्टडी ऑफ क्रस्टेशियंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ क्रस्टेशियंस इज कॉल्ड कार्सिनोलॉजी. कॉन्ड्रियोलॉजी, व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्ड्रियोलॉजी? कॉन्ड्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कार्टिलेज. ओके, यहाँ देखिए आप लोग देख सकते हो कॉन्ड्रियोलॉजी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, स्टडी ऑफ कार्टिलेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी. एंड द नेक्स्ट वन इज कोरोलॉजी. व्हाट इज द मीन ऑफ कोरोलॉजी हियर? कोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, कोरोलॉजी 13 नंबर आप लोग देख सकते हो. कोरोलॉजी क्या होता है? कोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द जियोग्राफिकल study of the geographical distribution of organisms. Okay, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? That is called the corology. Corology is the study of the geographical distribution of organisms. Okay, and the last one is nidology. What is the mean of nidology here? The nidology is the study of coelentrates. ठीक है, नीडोलॉजी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीडोलॉजी. ठीक है, नीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ coelentrates. Okay, the study of coelentrates is called nidology. उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कॉन्कोलॉजी. व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्कोलॉजी? कॉन्कोलॉजी क्या होता है? कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शेल. ठीक है, ये सेल वाला सेल नहीं है, इट इज़ अ शेल. स्टडी ऑफ शेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्कोलॉजी. ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्कोलॉजी. एक सेकंड, यहाँ से आप लोग एच को क्या करिए, रिमूव कर लीजिए. ठीक है, इट इज़ अ कॉन्कोलॉजी. ओके, CONCHOLOGY. ओके, इट इज़ अ कॉन्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ शेल्स. क्रैनियोलॉजी किसको कहते हैं? क्रैनियोलॉजी. व्हाट इज़ द मीन ऑफ दैट? क्रैनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्कल. ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्कल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैनियोलॉजी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रायोबायोलॉजी. ओके, दैट इज द क्रायोबायोलॉजी. ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ क्रायोबायोलॉजी हियर? क्रायोबायोलॉजी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑन लाइफ एट लो टेम्परेचर. ठीक है, स्टडी of effects on life at low temperature. ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज़ द टेटोलॉजी. ठीक है, यहाँ पर सी क्या होगा, साइलेंट है. ठीक है, दैट इज़ अ टेटोलॉजी. ये क्या है? टेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, देखिए कैरेक्टर भी कई टाइप के होते हैं, इनेट और एक्वायर्ड. तो कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, लेते हैं, खुद डेवलप करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर कैरेक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो उसी की स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं टेटोलॉजी. टेटोलॉजी इज द स्टडी
of acquired characters of organisms ओके। जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेटोलॉजी। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इकोबायोलॉजी, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इकोबायोलॉजी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इको बायोलॉजी। ओके, इकोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन द आउटर स्पेस। इको का मतलब इकोसिस्टम हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ existence of life in the outer space. Okay, so this is all about today. Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel. I will talk to later about some new words, ठीक है। इसके बाद हम कुछ न्यू वर्ड्स के बारे में और स्टडी करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। A to Z अभी हम लोगों को कितना पढ़ना है, A to Z हम सारे ब्रांचेस को पढ़ेंगे बायोलॉजी के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।